اب خواتین ہیں وہ آنا چاہتی ہیں لیکن وہ اس وجہ سے نہیں آتی کہ نیگیٹیوٹی کی وجہ سے نہیں آتی، وہ یوٹیوب پہ آنا چاہتی ہیں، تو وہ آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح آئیں؟ خواتین جو ہے ضروری نہیں کہ وہ اپنا جو ہے یہ جو شکل ہے دکھا کے ویوز لیں. میں نے ایسی کئی خواتین، میرے حال میں 1000 خواتین ہیں جن کا فیس بھی نہیں آتا، جن کی وائس بھی نہیں آتی، اور ان کے چینل ملینز میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کئی ایسی خواتین ہیں صرف وائس آتی ہے تو وہ اپنی سٹوریاں بتا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ صبر کے ساتھ کتنا کام کر سکتی ہیں. بڑے سارے لوگ گھروں میں پریشان ہیں، خواتین گھروں میں آپ کو پتا ہے ڈومیسٹک وائلیشن، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ اتنا مجبور ہیں، پریشان ہیں، شوہر نے چھوڑ دیا ہے، ڈیورس دے دی، مار پیٹ، بچے ڈسٹرب، سب کچھ ہو رہا ہے، وہ کام کرنا چاہتی. سوشل میڈیا برا نہیں ہے، برا بناتے ہیں ہم لوگ. کیا یوٹیوب کہتا ہے کہ اپنی برہنہ ویڈیو ڈالیں؟ فیس بک کہتا ہے، انسٹا کہتا ہے، ٹک ٹاک کہتا ہے، ٹویٹر کہتا ہے، کوئی بھی پلیٹ فارم آپ کو مجبور کرتا ہے کہ تسی ننگے ہو کے آؤ، یا تسی ٹپ چ نہاؤ، یا تسی کسی سوئمنگ پول دے وچ الٹیاں سیدھیاں چھلانگاں لگاؤ تو تہاڈی ویڈیو سی. لیکن سب سے بڑی چول جب آپ ماریں گے تو آپ وائرل ہوں گے ٹک ٹاک کے اوپر. ٹھیک ہے، لیکن میں نے کئی ایسا کنٹینٹ ایسے لوگوں کو بناتے دیکھا ہے، اسلامک کنٹینٹ، کئی کوکنگ کا، کئی فنی ویڈیو. اب فنی کنٹینٹ بنائیں، لوگ اتنے ڈپریشن میں پریشان ہیں، فنی ویڈیوز ان کو تھوڑا ریلیکس کرتی ہے. آج میں ایک اپنا کولیگ ہے اس کا سٹیٹس دیکھ رہی تھی تو مجھے آپ یقین مانیے میں پریشان بھی تھی، تھوڑی دیر تک میں نے دیکھا میری درد تھوڑی کم ہو گئی کیونکہ وہ اتنا فنی تھا کہ میں اتنا ہنسی اس کو دیکھ کے. تو فنی ویڈیوز بنائیں. اس نے کہا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ نہیں آ سکتی. اس برقعے نے مجھے کتنی عزت دی. میں شروع سے ہی ابائے کے اندر آئی ہوں. کچھ میری ویڈیوز ہوں گی جہاں پہ میں نے ابایا نہیں پہنا، لیکن میں ابائز کے اندر ہی میں نے سارے ابائز میں نے جو ہے ویڈیو میں ابائز پہن کے میں نے ویڈیوز اپنی بنائی ہیں. اس کے بعد میں نے انٹرویو کیا، ہلکا ہلکا کبھی میک اپ کر لیا. نہیں، مجھے اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں میک اپ کروں، میری شکل کدھر کو جا رہی ہے، میں نے آئی لائنر نہیں لگایا، میں نے لپسٹک نہیں لگائی، میں نے یہ نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں. میں ہلکا سا میک اپ کیا، کبھی نہ بھی کیا. کام پہ آپ کو پتا فوکس ہے. ہے میرا صرف فوکس ہے کام پہ. لوگوں نے میرا بوتھا نہیں دیکھنا کہ میں اندر تکیل آیا. وہ بے وقوف اور جاہل لوگ ہیں جو لوگوں کو میک اپ نہ کرنے کی وجہ سے انٹرویو نہیں دیتے. مجھے ایسے کئی فیمس پرسنالٹی نے منع کر دیا کہ آپ نے میک اپ نہیں کیا ہوا، ہم آپ کو انٹرویو نہیں دیتے. تو میرا صرف فوکس ہے کام کے اوپر. میں کرتی ہوں کام اور میں کرتی ہوں رب کے لیے کام. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو دیکھا جائے کتنی سادگی تھی، کتنی سادگی سے انہوں نے زندگی گزاری. کیا اس کو فالو کر رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ عورتیں، میں نے ایک عورت کی ویڈیو دیکھی، یقین مانیے وہ ویڈیو بنا کون رہا تھا؟ اس کا شوہر، یا اس کا بے غیرت بھائی، یا اس کا باپ، یا اس کا کوئی بیٹا. وہ صحن کے اندر بیٹھ کر بالکل برہنہ نہائی. نہانے کے بعد اس نے ایک بالکل بریک سا دوپٹہ اپنے پیچھے دیا، آگے سے بالکل پیچھے سے اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہ بستر اکٹھے کر رہی ہے، ساری اس کی جو ہے وہ سینہ جو ہے نظر آ رہا ہے. اے مومن عورتوں، جب آپ گھر سے باہر نکلو تو اپنے سینے کے اوپر چادریں ڈال لو تاکہ لوگوں کی نظریں نہ پڑیں. تو وہ برہنہ حالت میں اپنی ویڈیو بنا رہی ہے، پھر بستر کٹھے کر رہی ہے، برتن کٹھے کر رہی ہے، میں دھو رہی ہوں، دوپٹہ نہیں ہے، پیچھے سے اتنا بڑا گلا ہے، اپنے آپ کو برہنہ کیا ہوا. کون ویڈیو بنا رہا ہے؟ کون اس کو اجازت دے رہا ہے؟ اس کا شوہر بغیرت ہوا ہوا ہے، یا اس کا والد، یا اس کا بھائی. تو عورت اپنے ساتھ 3 لوگوں کو جہنم میں لے جائے. ٹھیک ہے، تو میرے حال میں اگر عورتیں پریشان ہیں تو بڑا سارا کنٹینٹ ہے، بڑا کچھ ہے بتانے کے لیے. آپ اپنے پاؤں کے اوپر وزن تو ڈالیں. ایک دفعہ رب کے قریب جا کے تو دیکھیں، وہ آپ کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا. استغفار کر کے تو دیکھیں، رب کے آگے جھک کے تو دیکھیں. رب سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے، ہم ایک دفعہ اللہ کہتے ہیں نا، وہ 70 قدم ہماری طرف خود چل کے آتا ہے. جی میرے بندے کیا بات. جب وہ کہتا ہے رات کا ایک تہائی حصہ جس میں وہ پکارتا ہے اپنے بندوں کو کہ ہے کوئی جس کی میں بخشش کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، اولاد مانگنے والا، اپنی بخشش طلب کرنے والا. میرا تو رب دوست ہے، میرا مددگار بھی میرا رب ہے، میرا محسن بھی میرا رب ہے، میرا محبوب. میں کہتی ہوں مجھے اکیلا فیل ہی نہیں ہوتا کہ میں اکیلے ہوں. ہر وقت ایک طاقت میرے ساتھ ہوتی ہے جو مجھے کہتی ہے تھوڑا اور، تھوڑا اور آگے دیکھیں. منزلیں اتنی جہاں آگے پڑے ہوئے، ہمارے پاس ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے سارا دن ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے آپ یوں کرتے رہیں. ٹھیک ہے،
किसी ने तो नहीं कहा आप 4 घंटे 6 घंटे अपना जो है वो टाइम ज़ाया करें, क्यों नहीं काम करते? इतना बड़ा सोशल मीडिया का इतने बड़े प्लेटफॉर्म, गांव के लोगों ने कंटेंट इतना सिंपल सिंपल खाने बना बना के, हमारी सुबह की रूटीन, हमारी शाम की रूटीन, हमारा खाना, हमारे पराठे, हमारे समोसे, हमारा आलू वाला पराठा, 5-5 मिलियन व्यूज गए उन्होंने। जो जिनको कोई रोटी नहीं खाने को देता था, आज उन्होंने अपने घर बना लिए, गाड़ियां ले ली, तो उनके अंदर भी पोटेंशियल तो है ना। तो दया काम तो करना पड़ेगा, काम के बगैर कोई भी रास्ता नहीं है, कोई हल नहीं है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब बंदा आया मांगने के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर मेरे अल्फाज आगे पीछे हो जाए तो माजरत अगेन, उनको एक कुल्हाड़ा दिया और कहा कि जाएं लकड़ियां काट के बेच के अपना काम करें। तो मांगना सबसे बड़ा जुर्म है। जो सड़कों पे प्रोफेशनल तरीके से ऐसे खड़ी होती है ना, मैं वो एक्टिंग भी करके दिखा देती हूँ, ये होता है उनका तरीका वारदात, ये और ऐसे, और लिखा होता है एक चार्ट कि हमारा किराए का घर है, हम बड़े मजबूर है। तो कपड़े उन्होंने पाया होंगे 5,000 वाला सूट, जेडे बच्चे कोल बैठे होंगे ना, उन्होंने 5,000 वाले 3,000 वाले सूट पाए होंगे ने, हमारा किराए का घर। रमजान में तो मैंने अक्सर देखे। तो ये उनका तरीका है वारदात है। जवान लड़कियों का खूबसूरत मेकअप फुल किया होता, आई लाइनर उनका और मस्कारा, जो मेकअप की चीजें मैंने सीखी, साफ नजर आ रहा होता है, और मुस्कुरा रही होती हैं। तो क्या कर रही हैं? जो उनको पैसे देने वाले हैं वो भी सबसे बड़े बेवकूफ हैं। क्यों दे रहे हैं जबकि मांगना जुर्म है? क्यों दुबई में और सऊदीया में पाबंदी है मांगने के ऊपर? वो कहते हैं काम करें, मेहनत करें, और मेहनत साड़ी पाकिस्तानी कौम ने करनी कोई नहीं। इन्होंने बस कहना कि वेले बवो ते उत्तों मना सलवा है, ठीक है। और एक मरासी सी ना, ते वो रोज कहे रब्बा मैनू रोटी दे, रब्बा मैनू रोटी दे। अब अल्लाह कैसे रोटी दे जब आप मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब गंदम पक गई, जैसे कि आजकल गंदम पकी हुई, गंदम पक गई तो उन्हें सारे बच्चे बेगम फड़ी तो आओ बढ़िए चल गए, कटाई की गंदम की करके, उसके बाद उन्होंने गंदम जो है वो घर लेके आए, आटा पिसवाया, तो रोटियां पका पका के ढेर लाता। अब वो अल्लाह से कह रहा है सानू नहीं देंदा बुरकी चप्पा, साढ़े को ले ला थप्पा। अल्लाह को यानी कि कह रहा है। तो वो इतना सादा बंदा था कि रोज कहता था कि अल्लाह शायद उसको सुटेगा। अल्लाह भी जब भी छप्पर फाड़ता है जब आप मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो 2 नफल हाजत के पढ़े, फिर देखो थोड़े किस तरह रंग लगते हैं। फिर कहो असी मेहनत दिन रात करो, हाँ सुबह 4 बजे उठो, हाँ तो रात 1 बजे तक काम करो। मैं वेखनी तुहानू किस तरह डॉलरां बरसात नहीं होती, नहीं होएगी बरसात, फिर दरख्त उग जाएंगे डॉलरां दे भरे हुए। जब आप रात 1 बजे तक अपने आप को सुबह 4 से चलाएंगे तो कितने घंटे बनते हैं? मैं आर्थराइटिस की पेशेंट हूँ, रिमाटाइड मेरा इस टाइम पीक पॉइंट पे। मैं रो के लोगों को बताऊं कितना को पिटूं रो। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, 4:30 4:45 नमाज पढ़ने के बाद, जैसे टाइम आगे होता जाएगा फजर का, नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत के बाद, अपने बेटे को कॉलेज का नाश्ता बना के देने के बाद, फौरी तौर पे छोटा मोटा काम जो है करने के बाद अपना सिलाई स्कूल सेट करती हूँ, क्योंकि बच्चों ने आना होता है। फिर मैं 9 बजे कमरे में चली जाती हूँ, फिर मैं घंटा डेढ़ लेटती हूँ, मैं बाहर आ जाती हूँ, रात 1 बजे तक मैं काम कर रही हूँ। कपड़ों का मैंने काम स्टार्ट किया है, खुद लेने जाती हूँ ऑरेंज लाइन ट्रेन पे बैठ के, कभी कोई चिंग चिंग रिक्शा, कभी कुछ। मेरा दिल नहीं करता मेरे पास आलीशान घर हो, गाड़ी हो। यार 4 साल हो गए यूट्यूब पे धक्के खांदे, सोशल मीडिया से 20 साल पीछे मैंने 9 साल की उम्र से घर से निकली हुई, आज 42 साल की होगी, फिर भी मैं मेहनत कर रही हूँ, आराम से घर बैठूं, मैं भी पिज्जे शवार में बर्गर ठूसूं और कहूँ खुला पैसा है ये वो। क्यों मैं मेहनत करती हूँ? किस लिए करती हूँ? कि मैंने कोई मटन खाना होता है? मैं अपनी आखिरत के लिए कर रही हूँ। अल्लाह कहता है तुम में से बेहतरीन वो है जो लोगों को नफा पहुंचाता है। तो जब आप रब को पार्टनर बना के काम करते हैं ना, लॉस नहीं है आपकी जिंदगी में। ये मेरा तजर्बा नहीं है, 1000% मेरा तजर्बा है। यूट्यूब पे क्वांटिटी ज़्यादा मैटर करती है कि क्वालिटी, मतलब कि वीडियोस की ज़्यादा पोस्ट करनी चाहिए कि कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है? यूट्यूब कहना मेरे वालों भावें 20 वीडियो लाओ तो भावें 50 तो भावें एक भी नहीं। हाँ, क्वालिटी मैटर करती है कि आप बोल क्या रहे हैं, आपका कंटेंट क्या है। अगर तो आपका कंटेंट बड़ा अच्छा है और आपको पता है कि वीडियो मेरी 2 भी चलेंगी 3 भी चलेंगी, अब मैं डेली के 2 व्लॉग भी लगा देती हूँ, कभी 3 भी कभी 4 भी, और कभी 2 दिन एक भी नहीं लगाती, क्योंकि एक वर्थ बन गई ना। तो क्वालिटी तो सबसे पहले जो है ना वो मैटर करती है। जैसे एजुकेशन कहते हैं नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एजुकेशन।
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ क्वालिटी ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ मैटर करो। कंटेंट की बात नहीं है, यूट्यूब कहता है मेरी तरफ से जितनी मर्जी आप वीडियो लगाएं, मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आप जो है ना वो देखें कि आप लगा क्या रहे हैं, उसके अंदर क्वालिटी मैटर करती है हर काम में। जब आपकी खालस नीयत शामिल हो जाएगी ना, खालस आपका कंटेंट, तो आप कामयाब हो जाएंगे। आप क्राइम और करंट अफेयर्स को कवर कर रही हैं, तो हर रोज नई खबर है और खबर पुरानी भी हो जाती है, तो आप एडिटिंग किस तरह मैनेज कर रही हैं और पोस्ट किस तरह कर रही हैं वीडियोस, और अपनी लाइफ को किस तरह रेगुलर चला रही हैं? देखें जी, मेरे अब्बू को अल्लाह जन्नत नसीब करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। वो लोगों को कहते होते थे उस्मान दे नाल ना एक दे जेड़ा अंदर सारा काम करता है, ठीक है। मेरी कोई लंबी चौड़ी टीम नहीं है, लंबे चौड़े कोई कैमराज नहीं है। आपने पॉडकास्ट भी मेरा देख लिया, एक जुगाड़ है, ये रब की मेहरबानी है, ठीक है। रब की जो नज़र होंगी ना सवली, सारे काम फिर बेड़े पार हो जाते। मैं ये देख लें कि अगर कोई बड़ा इशू आता है तो फिर मेरा दिल जो है, मैं व्यूज़ के लिए नहीं जाती, व्यूज़ तो रब दे ही देगा। मैं कहती हूँ उन लोगों का गम। अब आपने एक करंट देखा होगा कि जड़ावाला का वाकया, जो एक ही घर में 12 लोग जो है बेचारे, बच्चे औरतें सब, उनका खानदान लुट गया। मैं वहाँ पे कवर करने गई थी। वो प्रोग्राम मेरे लिए करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो इसलिए कि आप जो है किसी का गम कैसे सुन सकते हैं। एक बंदा है, उसके घर के 12 लोग फौत हो गए हैं, आप उससे क्या क्वेश्चन करेंगे। और फिर जब वो रो रहे होते हैं, तो कई लोगों ने कहा कि एंकर तो जो है वो बड़ा सख्त होता है, उसको रोना नहीं चाहिए, आप क्यों रोती हैं। तो मेरे अंदर गोश्त का दिल है, संगे मर का नहीं है, ठीक है। और मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं हूँ, मुझे सेंस है, तो मैं तो पहले रो पड़ती हूँ। और करंट फेयर जो भी करंट इशू आ रहा होता है उसके ऊपर मैं बात करती हूँ। मेरे हर इंटरव्यू जो भी मैं लोगों का करूं, या मेरा व्लॉग जो हो मैं बैठ के करूं, या जो भी मेरा पॉडकास्ट हो, उसमें एक मैसेज होता है, बड़ी गहरी मैं बात करती हूँ, समझ कोई कोई सकता है, ठीक है। तो ना छेड़ मलंगा नु बस मलंग अल्लाह ने कम चलाया, मैनू कोई पता नहीं था कि मैं एडिटिंग हो जाती, कि मैं लग जांदियां ने वीडियो और किस तरह व्यूज आ जाते हैं। क्योंकि मैं हर महीने रब से दुआ मांगती हूँ, या अल्लाह इन्ने पैसे दे दी कि मेरे 3 सिलाई स्कूल ने, उन्होंने किराया, उन टीचरों की सैलरियां और बिल मैं इजीली दे सकूं। बाकी दाल मूंगी दी पक जाए, चनिया दी पक जाए, कोई मसला नहीं, वो मैं दाल रोटी खा के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सजदे जाके भी अपने रब का शुक्र अदा करूँ ना, नहीं कर सकती पास हैदर, क्योंकि मैं कहती हूँ मैं उसका शुक्र उसकी एक नेमत का नहीं कर सकती कि उसने मेरे जैसे बंदे को 2 वक्त की रोटी दी इतनी सदियों से। उसने वादा किया हुआ, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूँ कि वो मुझे रोटी भी दे। हाँ, मैं इस बात पे भी डरती हूँ, कहीं मेरे अंदर अल्लाह ना करे राई के दाने के बराबर भी कभी तकबर ना आ जाए, ना आ जाए। अब मेरे पास इतने व्हाट्सएप भी आते हैं, इस पॉडकास्ट के अंदर भी लोग कमेंट कर रहे होंगे हमारे मैसेज का जवाब नहीं आता, ये वो फलाना। मैं अकेला बंदा हूँ, मेरे बच्चे हैं 2, मेरा घर है, मेरे सिलाई स्कूल हैं, मेरी टीचरें, बच्चियाँ, उन्होंने आना, सिलाई स्कूलों को मैनेज करना, कपड़े का मैं काम करती हूँ, ठीक है। तो कपड़े का काम, लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर तस्वीरें भेजना, फिर लोगों के फ्रॉड भी सहने, कपड़े लेके लोग पैसे नहीं देते कई, वो भी खामोशी से सह जाना, ठीक है। उसके बाद फिर लोगों को वीडियोस बना के भेजने, नहीं जी ये इस तरह हमें वीडियो बना के भेजें, फिर उन्होंने ऑर्डर कैंसिल करना। तो ये सब कुछ जो है मैं अकेले अपनी इस कमज़ोर सी बॉडी के ऊपर सह जाती हूँ, जो कि बिल्कुल ही अंदर से मैं ख़त्म हुई हूँ। तो ये सब कुछ उस मेरे रब की मेहरबानी है, मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। और मैं इस बात से डरती हूँ कि जब मैं कल को रब के सामने हाजिर हूँ, तो मेरी तो औकात नहीं है, मैं किस तरह उसके सामने मैं हिसाब भी दूंगी जाके। जो इस दुनिया में मैंने कमाया, पता नहीं कितने गुनाह किए, कितने गुनाह है मेरे जिम्मे, कितना मैं गुनहगार हूँ, ठीक है। ये तो रब को पता है ना, मुझे पता है। तो जब मैं कब्र में उतरूँ तो वहां पे रब के इनू छड़ दो, इनू बस छड़ दो। और अल्लाह कहता है मुझे अपने नेक कामों का वास्ता देकर दुआ मांगा करे। तो मैं कभी कभी जब डिसाइड हो जाती हूँ ना, फिर मैं कहती होती हूँ या अल्लाह मैंने एक दफा ए नेक काम किया तेनों उनका वास्ता मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे। मैं जो कुछ भी ये कर रही हूँ, इतने घंटे ड्यूटी जो भी है, सब मैं अपनी आखिरत के लिए कर रही हूँ। ना तो मुझे दुनिया की ज़रूरत है, ना मैं दुनिया की जोड़ जवैये के लिए कर रही हूँ, ना मुझे घरों की ख्वाहिश है, ना गाड़ियों की ख्वाहिश है। मेरी इंसानी ख्वाहिशात
کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں جب مجھے روٹی چاہیے تھی نہیں ملی اس وقت. آج روٹی اتنی ہے تو آج ڈاکٹر نے منع کر دیا اس روٹی نہیں کھانی. تو بس اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی خواہش ہے وہ ہسپتال کمپلیٹ ہو جائے, وہاں پہ کئی لوگوں کی جانیں بچ جائیں. اللہ میرے سے خیر کے کام لے لیا کرے. ٹھیک ہے. جو سلائی اسکول ہیں آج 3 ہیں, اللہ کرے یہ 30 ارب ہو جائے. ہر کونے میں ہر عورت اسٹرانگ ہو جائے. جس عورت کو میری ضرورت ہے میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤں اور اس کو اسٹرانگ کر دوں. یہ خواہش ہے.